Puneet's artistic journey reflects her profound connection to the performing arts and storytelling. In 2020, she made her debut as an author with her novel Take Number 2020, published by Penguin Random House. This book is a fascinating hybrid of pop culture and realism, offering a unique lens on the struggles and aspirations of 4 migrant actors in Bollywood. Puneet is also the founder-director of Indic Ocean Media Foundation, which creates insightful documentary series on the temples of India, promoting an understanding of Vedic culture. Let's give a big round of applause for Ms. Puneet Setka. We are equally honored to have our moderator, Ms. Shreya Tinkhede, is a film and lifestyle journalist who has worked in print and digital media. After working as a culture reporter in the Times of India, Nagpur, she hopped onto the cinematic stage of journalism and worked as a film critic and writer with Times Now, Zoom, and Asianet Newsable. Impressed by the world of movies and her passion for storytelling and acting, she recently completed her acting training from Saurabh Sachdeva's The Actor's Truth in Mumbai and is also a budding author. Now, without any further ado, let's begin this enthralling 40-minute session. Over to you, Shreya. Hello everyone. Firstly, thank you so much for such a warm welcome, and I welcome you as well, Puneet. So this is the 6th edition of the Orange City Literature Festival, and today we are at the last day of it, and what better way to end it than on a filmy note, because I truly believe that picture abhi baki hai, right? And as long as I can remember, I have lived in the world of cinema. Cinema has been my life, and whom better than you to have this engaging conversation with. So a round of applause for her once again, please. I want to know from you, Puneet, how deeply connected are you to cinema? Are you also a filmy bachchi, as they say, growing up? And how did this journey of being attracted to the world of movies and wanting to be an actress began for you? Well, hello, good morning, everyone. I'm a 90s kid, so we were all subject to films at the time, whether we liked it or we did not. And as children, you really don't have that discernment of what is good cinema, what is bad cinema. And I mean, honestly, it's for the better, I suppose. But yes, so the exposure to films was as much for me as it was for anybody else growing up in that time. I really did not think much about films at the time. When I was a child, I used to write a lot. I was participative in creative writing activities and all of that, and a bunch of other things. I always had multiple interests in music and dance and all of that. So I was training in those things. My mother had put me in all those activities. So it was just something that I was inclined towards the arts, but different forms of art. I did not actually train in acting growing up. And even in school, when there used to be stage plays or stage performances, that is one thing that I did not have the confidence to do. I had trained in classical music and in Bharatanatyam, so I would perform those, but I would not. I somehow did not have the confidence to do stage plays. But somehow in college, I decided that, the only way to actually deal with your fear is to take the plunge. So in college, I decided the Dramatic Society in my college was very strong. And even then, I started backstage, doing all the setting up the stage, the set design, the props, doing the running around. So I managed that till I sort of mustered the confidence to audition in front of 20 people looking at me. So it took me a little while, but it was fine. I think after I did my first stage play, it was like tasting blood a little bit. So the confidence built up with time. Theatre was still something which then I started theatre, and theatre was something which I still kept doing on the side with all the jobs that I was doing. I started off working with a business news channel, and somehow I found myself in writing in a writing capacity in everything that I was doing. So whether it was news, it was advertising. So I was mostly doing all of that.
and films happened per chance. But of course, the conscious choice that I made was when I decided to go to Symbiosis and major in film studies. That was my exposure to cinema in a deeper way, which was that, you know, we were being shown world cinema and the film appreciation that happened with that. So film appreciation में when you're watching world cinema, तो you're not just watching it like an audience, you're watching it like somebody who's studying it. So frame by frame, you're studying everything that goes into the language of cinema, the grammar of cinema. So that was very exciting to me. That was very enjoyable to me. So that is somehow how, and because मैं theatre भी कर रही थी और मैंने cinema की पढ़ाई की थी, so दोनों चीज़ें एक तरह से merge हो गई at some point, but that was a very natural process. इतना कुछ planning करके किया नहीं. So that is how my journey till this point has been. और फिर, yes, I started auditioning as an actor very, very consciously in 2018 when I was in Bombay. और उसमें से उन experiences में से ये book निकली है, Take Number 20. It's come from my own lived experience of being one of those actors who goes to Bombay like everybody else. And then, I mean, the twist to the plot is the pandemic. So, you know, that is something that we all bore in our own different ways. So I just put that, I gave those characters also the same problem. I was like, why should they be left out? You know, उनको भी वही सहने दो जो सब लोगों ने सहा है. So that is what the book is about. Lovely that was. Coming back to pandemic, your book is a lockdown baby. And I had read in the description as well that you always loved creative writing and this felt like the correct time for you to put in your experience in a manuscript. So I want to ask you, when you began audition, okay, firstly I want to ask in the audience, is there anyone over here who actually wants to become an actor? Anyone? Yeah, it's okay. You can raise. I want to become an actor. Yeah. Actually, all towards the stage and we're all actors in it anyway. So whether we are in front of the screen or we are not. So we're all in front, right? Yeah. Anyone who just feels like, you know, I want to go to Bombay and just stand in those long queues in Aram Nagar and crack an audition. I mean, I am one of them. No one? Okay, anyone who watches a lot of film series diligently? Yeah, you do? Okay. So from that, I want to know, because it connects with the book as well, how was your experience? Was it scary at first when you used to go to, for auditioning, or, you know, the casting director would say something good, bad, I know it very well. So I want to know that. Did somehow it inspired you to put in those experiences in the writing as well? Anything that you want to share? You know, I think yesterday I was at a session and I was saying my experience as a woman, and then somebody in the audience who was a male member said, and for men too. So I said, yes, sir, I'm sure for men too, but I'm speaking from my perspective. I'm sure we all experience this from our own, you know, from our own perspectives. But so just to give you a disclaimer, I'm saying this from my perspective, as a woman's perspective, that you know, being at that point where you're a newcomer and you're just sort of auditioning for anything and everything at that point, you're not really selecting the audition scripts per se. And then from there, if you get selected, you go to the film set or the shoot set. You know, it's one does learn to watch out for themselves. That how should I put it? Yes, there are instances where there are casting during the audition process. There are casting teams which are a little, they try and take a little leeway sometimes, depending on how that happens. And those instances have happened. Some of those instances I've sort of mentioned in the book also, because people sometimes think that they can say something, they can pass remarks. At least there is nobody's going to sue you for that, right? I mean, you can pass certain remarks which could be insinuations, which could be suggestions, and you know, you can just keep wondering and then they can deny it. So those sort of remarks I've heard, and but I think one has to just sort of train themselves to sort of overlook that unless it gets a little too extreme. So there was, just as an example,
to counter it, nowadays it's a little better for men and women. I did a series, a Netflix series called Decoupled with R. Madhavan in it. R. Madhavan and Surveen Chawla. And it was a small role, but because it was a Netflix series, so they were very, very particular about sexual harassment on set. So they made me go through, when we were signing the contract, they made me go through some videos, explainer videos and all of that, basically telling me that in case you find yourself in a situation like this, then what you should do, whom should you contact, so on and so forth. And then it was a very extensive contract essentially. And then only after you've gone through that and you've signed it, then you're sort of, you go on set. And that was what the contract entailed, that there was a whole segment on sexual harassment. So I think people are now also very careful, especially after the Me Too movement. They're very, very mindful of whatever they're thinking is one aspect, but they're very mindful of how they project themselves. So usually those cases don't come up, and I have been fortunate not to experience anything extreme. But yes, flying remarks here and there one listens to and then one just lets it pass. But that is not just the film industry. The film industry is just a sort of a microcosm of what we experience in life as well. So wo thoda sa apne aap ko, you learn how to work your way around that in life. So. Right, and which brings me to one of the points I would like to share, that when I started my acting classes, you all might know Saurabh Sachdeva. He was in Animal recently, who played Bobby Deol's brother. Even when we started our acting classes, they gave us like this huge write-up, which was for prevention of sexual harassment in the acting classes as well. So even when we had to like touch a co-actor or like go for auditions together, there would be a certain, guideline for it. A consent, which brings us to a very important part. Just an anecdote I wanted to share. Coming back to this, you mentioned earlier that the best way to cater fear is to take a plunge. And this book is one of that examples that, and you have always been a creative and an artistic person. Anything else that you have a little fear of, or something that you're thinking of taking a plunge to break in the same field, something that's on your mind, maybe another book we can get to read, or something in terms of your professional career, anything that you want to share? So when I was in, for this I'll give you a little roundabout answer, but stick with me, I'll come to the point. I was... when I was in Bombay and I was auditioning, the number one thing that I felt when I looked at the scripts was that I was slightly underwhelmed with the female parts, the female characters that they would write. And in conversations with friends, it would usually come up that, I've been a writer most part of my professional career, so professional journey. So it just sort of came as a thought that I can write. Then what is stopping me from writing my own role? If I'm feeling that bothered by it, why don't I sort of write something? And that was basically the genesis of this book, of writing a role for myself. And I did not immediately jump into that. It was a slow burn process. But I started writing and I said, okay, let me write a role for myself. Let me write one character. And that's how I started writing Meera. Meera is one of the characters in this book, Take Number 2020. And, okay, I'll just wait for everyone to pass. So I was just thinking that, let me write one character for myself. And gradually it grew into three other characters. That is W, Jayesh and Mickey. And it became about the film industry, but that was all a natural progression. So when I was writing Meera, I felt that, what would it be like to enact her on screen? So when I wrote that book, and now when I've written this book, it's actually, if you get a chance to read it, it's very visually written. It's almost as if you can see
what is happening in front of you. And that was the whole idea. And it was even not supposed to be a book. It was supposed to be the script for a web series. So I had written it episodically, actually. Only when I started fleshing out on each episode, I realized that मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, so maybe I should expand it into a chapter and into a book. And that's how it became a book. So I had never set out with the intention to write a book. I was writing a script for a web series. And keeping in mind that one of the parts that I'm writing is for myself, because this came from that, you know, there's a lack of better female characters, if I see that lack, you know, then I want to sort of address it. So now my thing is that it's a fear, but it's also exciting. Even though I've written it and I already see it like that, if I can set this book for an adaptation for screen, then I mean, that is something I would like to explore, the next kind of writing, which is screenplay writing. So if I can work on this book becoming a screenplay, then I would like to work with somebody on the screenplay of this book. And then, of course, act in the series or film or whatever it gets made into. So that is a very exciting thing for me. That is a goal for me with this book. But it's also, it's butterflies in my stomach a little bit. That's actually lovely, and I could relate to it, the butterflies in the stomach wala part for sure. And I want to ask you that, do you believe that anyone who has a passion for merging words together and putting in emotions can become a writer? Anyone in this room, if they want to become a budding author, I am myself attempting to write one, and I can take some inspiration for sure. What would you suggest? Anything, something that worked for you? Is it like sticking to a schedule, having the desk decorated in a certain way, or like reading something else, or watching something because we've a filmy background? Anything that worked for you to churn out this book? Anything that you like to share for the people over here who maybe wants to become a writer or wants to explore this thing? So actually my question is to all of you. She asked you if any one of you wants to be an actor. My question to you is, does any one of you want to be a writer? Okay, great. Is any one of you already a writer? No. But I think, you know, that's what I want to address to begin with, that we're all writers already. It's just about how we express, whether we express ourselves on paper or we don't. We all have an expression. We all have a story within us. We all have something to say about the world. हम जब friends के साथ, family के साथ बैठते हैं तो हम अपनी opinions देते ही हैं, right? You know, we share opinions. तो मतलब opinions हम सबके पास हैं. एक self-expression हम सबके पास है. So it's just a matter of who puts it down on paper and who doesn't. And I suppose that's what would distinguish somebody who is formally formally called a writer versus somebody who's not a writer. So that is something, I think, more of a mindset thing to begin with that we need to address. The second is that if somebody wants to actually to write and to get published is another thing, whether you want to write a book or you want to write an article or whatever it is. Point is that, like you mentioned, having a discipline. That, I mean, talent is one aspect, but discipline is totally, it's a skill thing. It's something that you have an interest, you can write sentences on a piece of paper, and you can decorate it and ornamentalize it the way you want. But point is, are you making your point to somebody? And that is something which is a secondary thing. You just show up every day on your desk that आज मुझे लिखना है, चाहे अच्छा लिखूं, चाहे बुरा लिखूं, चाहे 2 sentences लिखूं, चाहे 2 paragraphs लिखूं, I just have to write, and that is all that I need to do, you know. And जो उसके बाद में आएगा वो second step आता है. Just to give you an example, अभी मैं थोड़ा let me give you an example. When I wrote my book, मैंने जो first draft लिखा था book का, that is really bad. जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो बुक का बहुत ही ख़राब था, लेकिन बस एम मेरा ये था कि मैं स्टोरी लिख लूँ फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. एक पेपर पे, लैपटॉप पे स्टोरी लिख लूँ, बस दैट्स इट, चाहे जैसे भी पढ़ने में आए. उसके बाद जो सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, फोर्थ, फिफ्थ, जितने मैंने बहुत सारे ड्राफ्ट्स बनाए उसके बाद में, तब जाके ये बुक फाइनलाइज हुई. You have to stop judging your work. I would say that to be a writer, stop judging yourself. To be an actor, stop judging yourself. Because हम सब कहीं ना कहीं सीखते हैं. अगर एक बच्चा
छोटा बच्चा जो चलना सीख रहा है, अगर वो अपने आप को उस टाइम पे बोले यार मुझे तो चलना नहीं आता, मैं तो अपने पैर पे खड़ा हुआ फिर गिर गया, फिर खड़ा हुआ फिर गिर गया, इफ द चाइल्ड स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग इटसेल्फ, तो क्या वो चलना सीख पाएगा? नहीं, राइट? द चाइल्ड फर्स्टली डज नॉट हैव दैट डिसर्नमेंट, वो बस सीख रहा है, वो अपनी मसल्स बिल्ड कर रहा है. तो सिमिलरली विद राइटिंग और विद एनी फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी, शुरू में जब हम कुछ काम करते हैं तो उसको जज नहीं करना चाहिए, ना किसी को अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो हमको जज करें. हाँ, हम किसी और का एडवाइस ले सकते हैं, हम किसी और के कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि कई बारी लोग जाने अनजाने में आपको कुछ ऐसा बोल देंगे जो आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है. सो पॉइंट इज़ कि अपने आप को जज ना करें. जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो पहले तो लिखिए, राइट दैट डाउन, और उसके बाद में उसको आगे फर्दर इन्हांस करने के लिए अगर आपको स्किल्स सीखनी है, अगर आपको कोई मेंटर चाहिए, अगर आपको कोई क्लासेस या कोर्स करना है उसको बेटर करने के लिए, या आप अपने टीचर्स या समबडी हु इज़ ऑलरेडी अ राइटर हु कैन मेंटर यू, हु कैन गाइड यू, दे कैन हेल्प यू मेक दैट बेटर. तो फिर आप वो प्रोसेसेस होते हैं. सो इट्स जस्ट दैट मेरे साथ भी यही प्रोसेस था. द फर्स्ट ड्राफ्ट आई रोट वॉज नॉट टू माई सेटिस्फैक्शन, बट देन आई हैड my friend mentor me through the rest of the drafts, and after my friend who was already an author and editor, उसने जब मेरा first draft पढ़ा तो उसने मुझे एक चीज़ बोला. She said, Puneet, you have a story, but you need to better your storytelling. So storytelling is a craft. ये फिक्शन के लिए बोल रही हूँ, लेकिन नॉन फिक्शन में भी, अगर आप नॉन फिक्शन भी लिखते हैं तो उसमें भी एक स्टाइल होता है. तो आप उन लोगों से बात करिए. हम लोग कभी भी एक आइलैंड नहीं हो सकते. वी ऑलवेज नीड टू वर्क विद पीपल हु हैव ऑलरेडी sort of they're a little more well versed with that field. So I think this is my sort of giveaway to people that if you want to be writers, number one is discipline. आप रोज़ बैठ के लिखिए, और अगर आप नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट अपने डेस्क पे जाके बैठ जाइए. मेरे साथ ऐसा हुआ था that while writing the book, मैंने 2 महीने हाथ नहीं लगाया किसी. I showed up at my desk. ही रोज़ जाके अपने डेस्क पे बैठती थी, लैपटॉप खोलती थी और फिर उसको आई यूज्ड टू कीप स्टेयरिंग एट इट, और मैंने कुछ नहीं लिखा, एक वर्ड तक नहीं लिखा, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने गिव अप कर दिया है, अब तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगी, दैट्स इट. बट वो मैंने 2 महीने तक किया, 2-2.5 महीने तक चला वो. और मैं उस टाइम पे बहुत डर रही थी कि भाई मेरे पास स्टोरी नहीं है कहने के लिए. लेकिन वो एक पासिंग फेज होता है, वो आपका माइंड का ट्रिक होता है टू टेल यू दैट डोंट डू इट. वी सैबोटाज आवरसेल्व्स समटाइम्स, और ये हमारी माइंड हमारे साथ ट्रिक्स प्ले करती है. तो हमको माइंड को बताना है दैट नो, वी आर द मास्टर ऑफ यू, यू आर नॉट द मास्टर ऑफ मी. सो यू सिट ऑन योर डेस्क एवरी डे, ओपन योर लैपटॉप, ओपन योर डायरी, वॉट एवर यू राइट ऑन. अगर आपके पास एक शब्द नहीं है लिखने को, स्टिल राइट, और स्टिल सिट डाउन एंड कीप फोकस्ड ऑन वॉट यू वॉन्ट टू से. चाहे आपको उसके लिए वर्ड्स आए ना आए, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको जाके डेस्क पे बैठना पड़ेगा. सो दैट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डू. सो एज फार एज योर डिसिप्लिन एंड रिचुअल्स इज कंसर्न, मेरे अपने कुछ रिचुअल्स थे, मेरे अपने कुछ ऐसे थे, बट वो हर एक का अलग अलग हो सकता है, सबका अलग हो सकता है, सबकी स्थितियाँ अलग हैं, सबके टेम्परामेंट्स, माइंडसेट, स्केड्यूल्स अलग होते हैं. तो उसके हिसाब से आप अपने रिचुअल्स बनाइए. लेकिन एक चीज़ है कि आप अगर लिखना चाहते हैं या आप एक्टर या जो भी कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए एक डिसिप्लिन चाहिए कि वो रोज़ करें, थोड़ा ही करें लेकिन रोज़ करें. राइट. सो मानिए कि मैंने अपना एक स्केड्यूल बनाया है एंड आई एम स्टिकिंग टू इट, और मैं राइटर बनना चाहती हूँ. एंड आई एम ऑल्सो नॉट बीटिंग माई सेल्फ अराउंड द ग्रामर एज वेल, कि ठीक है मेरा ग्रामर ठीक नहीं है, मुझे ये वाक्य हिंदी में इतना स्पष्ट बोलना या लिखना नहीं आता है. इंग्लिश में ये मैं अच्छे से लिख पाती हूँ, बेस्ट तो मैं इंग्लिश में लिख पाती हूँ, आधा हिंदी इंग्लिश मिक्स. सो डू यू थिंक जो लैंग्वेज में राइटर कंफर्टेबल है उसमें उनको लिखना चाहिए? एक ये क्वेश्चन है. एंड सेकेंड इज़ कि अगर मैंने एकदम एंथुसियास्टिकली लिख लिया 10 पेजेस, 15 पेजेस, लेट्स इवन 5 पेजेस, फिर मुझे आ गया राइटर्स ब्लॉक, अब कुछ भी नहीं सूझ रहा है, माइंड इज एंटायरली ब्लैंक. So how to, yeah. So again, I will say one thing. We have these neural pathways in our mind. जो हम चीज़ रोज़ करते हैं ना, तो हमारी माइंड ऑटो मोड पे चले जाता है. That
मैं सुबह उठती हूँ, दांत ब्रश करती हूँ या गर्म पानी पीती हूँ या फिर ये करती हूँ, फिर वो करती हूँ, फिर वो करती हूँ, एंड देन द माइंड ऑलरेडी नोज, वो मैं नींद में भी कर सकती हूँ, यू नो। और हम सबके साथ एक रूटीन बैठ जाता है, हम उसको तो इवन इफ वी आर नॉट यूज टू इट, सॉरी इवन इफ वी डोंट डू इट, हमारा माइंड हमसे वो करा लेता है बिकॉज हम ऑटो मोड में चले जाते हैं। तो कई बारी उस राइटर्स ब्लॉक इसलिए होता है क्योंकि हम उस रूटीन में चले गए हैं। तो उस रूटीन को ब्रेक करना थोड़ा ज़रूरी है। उस रूटीन को ब्रेक करने का मतलब ये है कि जो आपका दिनचर्या है आप उसमें कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आप उसमें पूरे दिन में एक ऐसी एक्टिविटी करें जो थोड़ी हटके है, जो आपने कभी पहले ट्राई नहीं किया है। ये दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल थिंग आई एम टेलिंग यू। आप ट्राई करके देखना, सी इफ़ यू फील दैट डिफरेंस आफ्टर 15 days और 21 days। आप देखना उसको, आपको डिफरेंस लगता है कि नहीं। तो मान लीजिए आपका नॉर्मल स्केड्यूल जो भी है, स्कूल क्लासेस जो भी हैं, आप जाते हैं, आप you come back and some of you cook, some of you just whatever, meet friends, जो भी है आपका रूटीन है, एक आपको पता है कि अच्छा ये करना है। उसमें एक चीज़ करिए, जितने भी समय आपके पास है, 15 मिनट है, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी टाइम है आपके पास, जस्ट डू वन एक्टिविटी विच इज़ डिफरेंट। गार्डनिंग कर लीजिए, कभी नहीं किया गार्डनिंग तो नो, या फिर एम्ब्रॉयडरी कर लीजिए, यूट्यूब खोल के सीख लीजिए 15 मिनट एम्ब्रॉयडरी कैसे करना है। आई एम जस्ट गिविंग यू वाइल्ड आइडियाज़। आप अपने से पिक करिए कि आप क्या एक चीज़ ऐसी ट्राई करना चाहते हैं जो आपने, और शायद आप जीवन भर में वो कभी करेंगे नहीं, आपका कोई गोल नहीं है उसके साथ, लेकिन आप वो चीज़ एक ट्राई करिए जो आपने कभी नहीं की, जो बहुत हटके है। कोई पॉटरी कर ले, कुछ ट्राई कर ले, कुछ पेंट बना ले, कुछ कर ले। डू समथिंग विच यू हैव नॉट डन फॉर अ फ्यू मिनट्स इन द डे। और आप उसको 15 दिन के बाद आप नोटिस करिए जो आपका राइटर्स ब्लॉक है वो कैसे एड्रेस होता है। एंड वो इसलिए होता है बिकॉज इट्स अ माइंड थिंग। तो जो आपके न्यूरल पाथवेज है ना, वो अचानक से शॉक में आ जाते हैं कि यार अभी तो हमें होमवर्क का टाइम है, या तो अभी हम मूवी देखने, हम रोज़ इस टाइम पे मूवी देखते हैं, या हम कुछ और करते हैं जो हमारा रूटीन है। सडनली अचानक से ये क्या हो गया इस बंदे को, मतलब क्या चाहते हैं वो, क्या वाई मैं पेंटिंग क्यों करूं। दिस इज द थॉट ऑफ द माइंड। बट व्हेन यू ब्रेक दैट माइंड कॉन्सेप्ट, आप जब कुछ करते हैं ना, तो वो माइंड मजबूर हो जाता है आपको और आइडियाज़ देने के लिए। सो दैट एक्चुअली एड्रेसेस योर राइटर्स ब्लॉक। एंड देन सडनली व्हेन यू आर राइटिंग, यू लाइक, आप एक ही चीज़ को देखने का अलग नज़रिया पकड़ लेते हैं। So that is what doing something else, changing your routine, that is how it helps you to give a different perspective to your writing. कि आप अपनी writing में एक अलग नज़रिया, एक अलग perspective कैसे देख सकते हैं। This is also true for acting. I have noticed that जब मैं बॉम्बे में थी तो एक समय पे कुक आती थी मेरे घर पे, तो वो खाना बनाती थी दीदी, और सुबह शाम का खाना बना के चली जाती थी। फिर एक दिन अचानक उनके घर पे, उनके गांव में कुछ इमरजेंसी हुआ और उन्होंने बोला कि मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए, तो वो चली गई। तो मैंने सोचा अब मैं ना किसी और को नहीं रखती हूँ, मैं खुद ही बनाऊँगी खाना अपने आप से। तो मैंने वो 1-1.5 महीना अपने आप से खाना बनाया। रोज़ सुबह उठ के आई यूज्ड टू मेक द खाना, और फिर मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी। एंड यू विल नॉट बिलीव इट, आई एक्चुअली स्टार्टेड परफॉर्मिंग बेटर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अब आप बोलेंगे कि कुकिंग का एक्टिंग से क्या लेना देना है। तो आप जब कुछ चीज़ अपने हाथ से बनाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ भी करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, कोई पोएम लिखते हैं, कोई कुछ लिखते हैं, गार्डनिंग करते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आपकी रूटीन से हट के है, वो आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत योगदान देती है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जब मैंने कुकिंग करना शुरू किया, आई नोटिस्ड आई बिकेम अ बेटर एक्टर। सो व्हेन आई वाज राइटिंग, आई स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। एंड जब मेरा दिमाग नहीं लगता था, या जब मुझे राइटर्स ब्लॉक हो जाता था, और वो 2 महीने खास करके जब मैं कुछ नहीं लिख पा रही थी, तो मैंने अलग अलग कुछ एक्टिविटीज़ ट्राई किए, और फिर मुझे कुछ और आइडियाज़ आए। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल यू प्रैक्टिकली, हाउ यू कैन एड्रेस challenges when you're stuck in life, कि अब तो I'm stuck, I can't move. So try doing something like this. क्योंकि आपकी हमारी डेस्टिनी हमारे हाथ में ही है at the end of the day. तो जो हम क्रिएट करते हैं, हमको अपने ही solutions ढूंढने हैं अपने problems के लिए. So I can absolutely relate and understand that cooking wala point you put, because yes, it does help. It's just been a few months that I started into this acting thing,
एंड मैं तो इतनी डरी सहमी, सोशल एंजाइटी. सो आई डिसाइडेड टू टेक अ सोशल रिस्क वन डे, विच वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ करिकुलम, दैट यू वेयर समथिंग इन पब्लिक दैट यू विल नेवर स्टेप आउट वेयरिंग इन योर हाउस. सो आई एक्चुअली वोर अ हाफ कट स्लीव का शर्ट and it didn't have one sleeve, and that way I traveled from Navi Mumbai to Andheri, and I stuck tampons and pads onto my body, because whenever I used to go to a pharmacy to ask them for a sanitary napkin, they would wrap it in a newspaper and then give. We put like a sort of shame to that thing. तो मुझे उस चीज़ से काफ़ी झिझक होती थी, और मैं सोशल एंजाइटी में बहुत रहती थी. तो मैं सोचा कुछ करते जिससे मैं सोशल रिस्क ले पाऊँ. आई ट्रैवल लाइक दैट इन लोकल, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे, नाउ आई डोंट केयर what people think of me in terms of what are you wearing, how your hair is looking, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसी नहीं दिख रही हूँ. And that helped me become very confident for my auditions as well. और मेरा डर खत्म हो गया. वरना पहले ऐसा होता था कि अगर मैं ऑडिशंस देने जाऊँ तो मेरे अंदर की न्यूज़ रिपोर्टर जाग जाती थी, एंड आई वुड से एवरी डायलॉग इन वन टोन. सो दैट डज हेल्प, एंड शी इज़ राइट अबाउट इट. नाउ जैसे कि आपने कहा कि राइटिंग के लिए आपने कुछ प्रेप बताया. इट हैज़ बिकम अ वेरी सेंसिटिव वर्ल्ड नाउ दिस डेज. द काइंड ऑफ फिल्म्स वी कंज्यूम, द काइंड ऑफ social media reels that we all are guilty of seeing, there are certain things which goes beyond our moral upbringing, or let's say our morality in general, be it a film like Kabir Singh or Animal, wherein alpha male is been glorified or females are undermined. So जब अब ये तो फिल्मी चीज़ें हो गई. अगर कोई राइटर को अपना एक कोई कैरेक्टर है जिसको नेगेटिव लाइट में अपने बुक में उसको हाईलाइट करना है, तो डू यू थिंक अ राइटर शुड हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एड्रेसिंग दैट टाइप ऑफ अ कैरेक्टर, और दे शुड गो ऑल आउट, बट देयर शुड ऑलवेज बी अ विन ऑफ good over evil, or it is also okay if sometimes negativity wins? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्या आप लोग भी इस समस्या में पड़े हैं कि आप लोग ने कबीर सिंह देखा या एनिमल देखा, और आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन किया, एंड सम गाइज आर ओके विद कि जो दिखा रहे हैं ठीक है यार, फिल्म मेकर की लिबर्टी है, राइटर की लिबर्टी है, एक्टर्स भी तो कर ही रहे हैं, और समटाइम्स द गर्ल्स आर लाइक कि क्या मतलब है यार, फिल्म्स हैव्स दैट मच इम्पैक्ट, इतना इन्फ्लुएंस होता है इन लोगों के पास, लोगों का दिमाग ख़राब कर देते हैं. कितने लोग हैं इंडिया में जो मूवीज़ देख कर ही तो अपनी वैल्यू सिस्टम बना रहे हैं. तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत, ऐसा लगता है आपकी, आप कभी किसी ऐसे डिबेट्स में पढ़े हैं, है ना. तो आई फील दैट इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कि अगर आप समाज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ लिख रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. दैट इज़ माई व्यू. अभी इस पे बहुत सारे काउंटर व्यूज़ हैं कि जाने दो, कुछ भी हो जाए. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन को रिलेट करके देखिएगा. व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ सिविक सेंस? सिविक सेंस यानी कि जब ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट होता है, येलो लाइट होता है, ग्रीन लाइट होता है, अगर वो ना हो तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स होंगे, हर कोई आगे जाना चाहेगा, पीछे जाना. फिर आप बोलेंगे अरे फ्रीडम होनी चाहिए, मैं क्यों रुकूं, मुझे गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, मैंने पैसे खर्च किए हैं, मेरे पास लाइसेंस है, मैं तो कहीं भी जाऊं, मैं क्यों रुकूं किसी और के लिए, सो. बट एक सोसाइटी में जब आप रह रहे होते हैं तो आपको एक लहजे से रहना होता है, एक तमीज़ से रहना होता है. कुछ चीज़ें हैं जो रूल्स बनाई गई हैं, हर रूल खराब नहीं होता, कुछ रूल्स ज़रूरी होते हैं, और उन रूल्स का पालन करना इट्स आवर ड्यूटी, बट इट इज़ ऑल्सो फॉर द सेक कि हम अगर वो रूल्स ब्रेक करेंगे तो फिर किसी और को भी राइट है वो रूल्स ब्रेक करने का, तो वो फिर आके हमको प्रॉब्लम करेंगे. तो हमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है सोसाइटी में रहने के लिए, ठीक है. नहीं तो आप कहीं पहाड़ में एक घर अकेला खरीद के रही है ना, आपको कोई रूल्स नहीं फॉलो करने. तो बट रूल्स ब्रेक भी करने चाहिए, बट वो एक अपनी डिसर्नमेंट होती है, एक अपना जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग होता है, ठीक है. आई नो आई एम सेइंग सर्टेन थिंग्स जो क्वेश्चन हो सकते हैं, बट दिस इज़ माई व्यू. तो इसी तरह से आप जब क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे तहस नहस कर देते हैं तो उसको फिर लिबर्टी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनार्की.
उसको बोलते हैं कि आप किसी और की कलेक्टिव कॉन्शियस जो बोलते हैं उसकी जो क्या बोलते हैं इंटेग्रिटी, उसको आप ख़त्म करते हैं। तो एज क्रिएटिव पीपल अगर आपको फ्रीडम मिली है, किसने बोला था ये, विद ग्रेट फ्रीडम कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी? हु हैड सेड इट? एनीबडी रिकॉल्स? एक्चुअली was it Spider-Man? So have you heard of this? With great freedom comes great responsibility. So the more freedom you want actually in life, you have to be more responsible then. You can't be irresponsible. Because अगर freedom responsibility के बिना आती है तो वो freedom नहीं होती, वो कुछ और ही होता है। उसका मतलब आपका दिमाग खराब है। In very basic crude terms, उसका मतलब that you don't give two hoots about what somebody else thinks. Okay, so I feel, in my opinion, when somebody, especially filmmakers like these people, these makers of Kabir Singh and Animal, these people think that they are God's gift to mankind. तो अगर उन्होंने कुछ बनाया है तो उन्हीं का हक है किसी और पे कमेंट करने का। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे, दिस फिल्म मेकर हिमसेल्फ इन क्वेश्चन, व्हेन ही वाज आस्क्ड क्वेश्चंस दैट आपने ऐसे कैसे सोचा, हाउ डू यू मेक दिस जजमेंट अबाउट विमेन, व्हाई डू यू शो थिंग्स लाइक दिस, तो उसने बोला यू डोंट हैव एनी राइट टू आस्क मी दैट क्वेश्चन। सो अगर वो क्वेश्चन नहीं चाहते अपने ऊपर, लेकिन वो दुनिया के ऊपर लांछन, मतलब दे शो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कि हम आपके बारे में केयर नहीं करते, तो वो गिव एंड टेक नहीं है। सो माई पॉइंट इज दैट एज क्रिएटिव पीपल यू हैव टू हैव सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका इन्फ्लुएंस क्या है एज अ राइटर, एज अ मेकर, एज अ क्रिएटिव पर्सन। और वो फिर बात आ जाती है सिर्फ आपकी इंडिविजुअल मोरालिटी पे कि आप कौन हैं। तो आप जब भी कुछ क्रिएट करें तो वो एक डीप क्वेश्चन एक होता है, अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं जो कि मैं कौन हूँ, असल सेंस में, रियल सेंस में मैं कौन हूँ और मैं दुनिया में क्या दे रही हूँ, मेरी लेगेसी क्या है। मैंने एक किताब लिखी, मैं बहुत ही ख़राब स्टोरी लिख सकती हूँ। ख़राब स्टोरी मतलब कि मैं उसमें कुछ भी डाल सकती हूँ, क्योंकि भाई मेरी बुक है, मैं कुछ भी लिखूँ, ठीक है। आपको नहीं पढ़ना तो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन वो किताब शायद कुछ ऐसे लोग पढ़ें जीवन में। अभी मैं एक एज की हूँ, 20 साल के बाद मेरे में थोड़ी और मैच्योरिटी आ जाएगी, फिर मुझे दुख होगा कि मैंने ये क्या लिखा है। बिकॉज ये किताब तो चलती रहेगी ना, किताब और फिल्म्स तो दे स्टे फॉर एवर, वो लाइब्रेरीज में जाके स्टॉक हो जाती हैं। कहाँ की कहाँ चीज़ें, अभी हम 1950s की कोई फिल्म सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, कुछ क्लिप्स आ जाती हैं, किसी की पुरानी इंटरव्यूज़ आ जाती हैं और वो उनको अब काटने को दौड़ती हैं वो चीज़ें। तो थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, आप शायद इस मोमेंट में जोश में आपने लिख दिया, कह दिया, लेकिन वो आपको 20 साल 30 साल के बाद जब आपके बच्चे हो जाएंगे, जब वो बड़े होकर वही गलतियां करेंगे और वही उसी प्रॉब्लम्स में पड़ेंगे जिसको आप ठेंगा दिखा रहे थे दुनिया को, फिर वो आपको आके बाइट करेंगी बैक में। तो हम विजडम इसी को तो कहते हैं ना, विजडम इसी बात को बोलते हैं कि हमको सब कुछ नहीं पता जीवन में, हम गलतियां करेंगे, लेकिन ये एक थोड़ा सा सोचिए कि आपकी मोरालिटी अभी ऐसी है, 20 साल 30 साल के बाद कैसी होगी, और क्या जो आप लिख रहे हैं, जो कि आप समाज को दे रहे हैं किसी भी तरह से, एक किसी आर्ट में, किसी भी फॉर्म में, लिखित रूप में दे रहे हैं, एक्टर के तौर पे दे रहे हैं, म्यूजिशियन डांसर के रूप में दे रहे हैं, तो वो दुनिया को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। और दुनिया में शायद 5 लोग ही होंगे शायद जो मेरी किताब पढ़ें, हो सकता है, ये भी नहीं कि शायद बहुत सारे लाखों लोग पढ़ें, लेकिन उन 5 लोगों को अगर कुछ पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है मेरी किताब पढ़ने से, किसी भी तरह का इंस्पिरेशन मिलता है, या किसी तरह से उनको लगता है कि हाँ ये बात मुझे समझ आई, या मैं कुछ कर सकता हूँ, या मैं कुछ कर सकती हूँ, इसके बारे में कुछ इंस्पिरेशन मिले, तो वो अच्छी बात है ना। इट्स लाइक इट मेड अ डिफरेंस टू दैट वन स्टार फिश वाली जो कहानी। ये आपको स्टोरी पता है स्टार फिश का? तो एक आदमी सी शोर पे चल रहा होता है, तो बहुत सारी स्टार फिश शोर पे आ जाती हैं जो कि पानी में होनी चाहिए, वो बिना पानी के फिर मर जाएंगी। तो वो फिश जो है वो आके शोर पे हो जाती है, बहुत सारी लाखों के नंबर्स में वो स्टार फिश ऐसे बिखरी हुई हैं शोर पे। तो वो एक आदमी अकेला वो स्टार फिश उठा के ऐसे पानी में फेंक रहा है, तो एक एक करके ऐसे फेंक रहा है। तो किसी ने आके उसको बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, आप इन सबको नहीं बचा सकते,
कहते मैं इन सबको नहीं बचा सकता, लेकिन मैंने इसको तो बचाया, मैंने इसको तो बचाया, मैंने इसको तो बचाया। तो आप जितने के लिए भी भला कर सकते हैं, एंड व्हेन आई से भला, आई डोंट मीन कि यू हैव टू बी अ गुडी पर्सन कि सब कुछ अच्छा हो, जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो अच्छा हो। नो, आई मीन अपनी ऑथेंटिक वॉइस से करें, लेकिन ये सोच के करें कि किसी को नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू मेक अ। Yeah, she deserves a round of applause for this answer, guys. Yeah, that was a beautiful takeaway. So we just have 5 minutes, I suppose. We can take a few questions from the audience. And कोई मेरे लिए भी please ये पूछ लीजिएगा कि self publishing अगर आप सब लिख रहे हैं, you wanted to ask? Can I pass the mic? Oh, it's okay. Ma'am, can you just tell me that self-publishing is best or traditional? देखिए, देर इज़ नो बेटर और वर्स वे। कई बार होता है कि जो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग होती है उसमें प्रोसेस बहुत लंबा खिंच जाता है कि आप पहले एक एजेंट को ढूंढें, क्योंकि यूजुअली जो पब्लिशर्स होते हैं उनके पास इतनी तादाद में कॉपीज़ आती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आती हैं, दैट समटाइम्स वो ओवरलुक कर जाते हैं, यू नो। सो उसके लिए आपको एक एजेंट चाहिए। तो पहले तो आप एक एजेंट खोजिए, फिर एजेंट मिलेगा तो एजेंट अपना समय लगाएगा किसी पब्लिशर को ढूंढने में, फिर आपको पब्लिशर मिल जाएगा तो पब्लिशर उसमें से कमीशन भी लेगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि जो पब्लिशर है वो आपको उस तरीक़ा का प्लेटफॉर्म भी देगा, आपको उस तरह की विजिबिलिटी या रीच भी मिलेगी कि हाँ आपने इन पब्लिशर के साथ पब्लिश किया है तो आपको उसके कुछ पर्क्स मिलते हैं, तो वो जो आपको मिलेंगे वो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग है। जो सेल्फ पब्लिशिंग है उसमें थोड़ा सा हार्डवर्क वैसा लगता है कि आपको शुरू में बहुत ज़्यादा मार्केट करना पड़ेगा उसको, राइट। अपने आप से, अपनी कम्युनिटी में, शायद आप ही के दोस्त और फ्रेंड्स पहले, फैमिली पहले पढ़े, क्योंकि आपने खुद पब्लिश किया है तो आपको उस नेटवर्क के बाहर कोई जानता नहीं है, तो आपको उस हिसाब से अपना एक नेटवर्क, एक कम्युनिटी बिल्ड करने में ज़्यादा मेहनत लगे। लेकिन वो भी अपने आप में एक पर्क्स होते हैं, क्योंकि फिर जो आपको रीडर्स मिलते हैं, जो आपकी कम्युनिटी बनती है, उसमें वो आपके लॉयल कम्युनिटी होती है, आपके लॉयल रीडर्स होते हैं कि आपने इसके बाद में कुछ भी लिखा या कुछ भी जाके किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में कुछ बात की, वो आपके सपोर्टर्स रहेंगे फॉर लाइफ। तो ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल में नहीं होता है, लेकिन ट्रेडिशनल पब्लिशिंग का ये एक डाउन साइड है कि उनके पास क्योंकि इतने ऑथर्स होते हैं, इतनी बुक्स होती हैं, तो वो सबको प्रमोट कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका लिमिटेड हो जाता है रीच, अनलेस कि आपने आजकल क्या है कि बहुत सारे राइटर्स और जो भी हैं ऑथर्स, उनके अपने एक अलग से इन्फ्लुएंसर्स हैं या कुछ जो भी उनके अपने, तो वो पब्लिशर्स भी उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि भाई आपके पास कितने फॉलोअर्स हैं तो हम उसी के बेसिस पे चलते हैं। तो सेल्फ पब्लिशिंग और ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में ये अंतर है, बाकी दैट चॉइस इज़ योर्स, क्योंकि बुरा या बेटर उसमें से कुछ नहीं है, दोनों ही एक समान है, लेकिन उसमें एक लेवल ऑफ वर्क और लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो अलग है, वो वेरीड है। और सेल्फ पब्लिशिंग में ये है दैट वट एवर यू अर्न इज़ योर्स, उसमें आप किसी और को नहीं दे रहे हैं, उसमें आप किसी और को कमीशन नहीं दे रहे। तो अगर आपका बुक पब्लिशिंग से, इफ़ योर एम विद राइटिंग अ बुक इज़ टू अर्न मनी, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, यू डोंट अर्न मनी राइटिंग बुक्स। किताबें आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए होती हैं। हाँ, आप उस किताब को आगे किसी फिल्म में बना दो तो उसमें आपके लिए पैसा है, आप उस किताब को आगे कुछ ऐसा सेल करो कि आप ऐसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कर लो तो उसमें पैसा है। केवल किताब लिखने में पैसा नहीं, अनलेस कि आपकी किताब लाखों करोड़ों में बिके, और वो पॉसिबल है, लेकिन उसमें मेहनत लगती है और सेल्फ पब्लिशिंग में थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो वो एक चॉइस है, तो बेटर वर्स कुछ नहीं है, बस एक चॉइस है कि इसका ये प्रोज एंड कॉन्स है, उसका वो प्रोज एंड कॉन्स है, उस हिसाब से। Anyone else want to ask? Last question, please. No? एक ही क्वेश्चन पूछना है कि जैसे एनिमल मूवीज है और ये कबीर से, तो ये रेजोनेट क्यों की ऑडियंस के साथ इतना सारा, मतलब व्हाई वाज इट सच अ बिग हिट? I actually think हम सबका ना
ऑल ह्यूमन बींग्स में दो साइड्स होते हैं. एक देर इज कॉल्ड अ गुड वुल्फ एंड देर इज अ बैड वुल्फ. एक एंजल डेवल नहीं बोलते कि एक कंधे पे एक एंजल है, एक कंधे पे डेवल है. तो क्योंकि हम घोर कलयुग में हैं मेरा ये मानना है, क्योंकि हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे हम लोग को कॉन्शियसनेस नहीं है. हम एक्चुअली देखिए तो बहुत अनकॉन्शियसली जी रहे हैं. यू नो, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं 24 घंटे. हमको कोई ये नहीं है कि किसी को टाइम दिया. पहले होता था, बोलते थे पहले के ज़माने में किसी को ज़बान दी है, हम इस समय आएंगे, हम उस टाइम पे मिलेंगे, हम आपको मिलेंगे, वॉट एवर, वी गिव अ वर्ड टू समबडी एंड वी वुड कीप टू इट. अब वो भी नहीं होता है. यू नो, सो नोबडी केयर. सो वी आर एक्चुअली लिविंग इन दैट कलयुग. ठीक है. तो जब कोई मूवी देख रहा होता है या कोई बुक पढ़ रहा होता है, इट्स अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस. अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, आपके साथ 10 लोग और ऐसे साथ में नहीं पढ़ रहे हैं. वो अपनी बुक पढ़ रहे हैं, मतलब अगर वो अपनी इंटरप्रिटेशंस बना रहे हैं. तो जो भी आपके सबसे वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन है, जो सबसे नेगेटिव शैडोज हैं आपके माइंड के, क्योंकि हर एक में होता है, you know, the yin and yang, the dark and light, everyone has that. So when you're watching a film in a theater, in a hall, or when you're watching it by yourself, you are consuming it. तो वो कहीं ना कहीं आप outwardly बोल सकते हैं. कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अरे नहीं, this is really bad, we condemn it. लेकिन अंदर ही अंदर शायद वो enjoy कर रहे हैं. ठीक है. तो कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं. तो कुछ लोगों ने आके बोला कि हमें फिल्म पसंद नहीं है, लेकिन वो गए हॉल में देखने के लिए, उन्होंने टिकट खरीदी. तो ये मूवी का सक्सेस कैसे आया? टिकट सेल से ना. तो लोग जो लोग इस चीज़ को नहीं भी मानते, अब जैसे कुछ महिलाएं हैं जो दे विल से दैट वी डोंट बिलीव इन दिस, वी सॉ कबीर सिंह बट दिस इज बैड, बट लेट्स गो एंड सी व्हाट इट इज अबाउट. तो वो उन्होंने भी जाके टिकट खरीदा. तो दे ऑल्सो गेट काउंटेड इन द पीपल हु मेड द फिल्म अ सक्सेस. ये नहीं कि इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, इट्स जस्ट अ थिंग, दैट्स इट. सो बट द पीपल हु एक्चुअली इंजॉयड इट एंड हु लाइक्ड इट, उन लोगों का एक शैडो साइड है जो, मतलब अगेन ऐसा लगेगा कि मैं उनके ऊपर एक जजमेंट पास कर रही हूँ, बट जो भी है आप उसे जजमेंट समझिए, आप उसे कुछ भी समझिए, मेरा पर्सपेक्टिव है. लेकिन जिन लोगों ने इन्जॉय किया, तो आई थिंक एक सोसाइटी का जो नेगेटिव साइड है वो भी हाईलाइट करता है, कहीं ना कहीं वो भी हाईलाइट करता है. एंड दैट इज समथिंग दैट आई कांट से why do people still think like that. लेकिन there are a lot of people who don't think like that also. लेकिन हाँ, उससे एक ये पॉजिटिव शायद एक चीज़ आई है, राउंड अबाउट वे में एक पॉजिटिव ये चीज़ आई है कि people started debating. तो that. Okay, on that note, thank you so much, Puneet. It was lovely talking to you. Thank you for your enlightening words. And I hope you all also enjoyed the session. And तालियां बजाते एक बार सब. So yeah, thank you so much, guys. And you can sit if you want to attend the next one, or you can proceed to the other halls. You can please give this book a read. And I wished I had given my email ID or something, but then you can, or maybe you can write to me on Instagram. But I would really like to hear your thoughts on it. And especially, you know, like, I mean, there are all kinds of characters. It's not just the girl character. There are also the male characters. Actually, my favorite character, to be honest, in this book is W. So if you get a chance, please read and tell me what you think about it. Okay? Your feedback really matters to me. Thank you. Sorry? Advices to pressure us. Advice? Like what? What advice? About writing. Just write. Just pick up your notebook every day. Just write. 15 minutes. Write about दिन कैसा था, आज मुझे सब्जी खरीदना है, आज मुझे वहाँ जाके उसको. लेकिन 15 मिनट कुछ लिखो, कुछ भी अपने दिमाग से जर्नल करो. एवरी डे जस्ट जर्नल. एंड वो जर्नल क्रिएटिव राइटिंग नहीं है, दैट्स जस्ट राइटिंग. और वो आप देखोगे आपका जब आप मॉर्निंग में आप जब सारे अपने रूटीन्स करते हैं, उसके बाद आप काम पे जाते हैं ना. सो सिमिलरली जर्नलिंग की एक हैबिट बना लो इफ़ यू वांट टू बी राइटर्स. और वो जर्नलिंग में आपने क्रिएटिव राइटिंग नहीं करना है, आपने बस अपनी राइटिंग करनी है. जस्ट गेट दैट, इट्स लाइक अ मेंटल डंप. जस्ट गेट ऑल द नेगेटिव थॉट्स, ऑल द थॉट्स आउट ऑफ योर हेड, और सब कुछ लिख लो कि आई डोंट लाइक दिस अबाउट माई सेल्फ, आई लाइक दिस अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट लाइक रुचि, आई डोंट नो वाई शी डिड दैट. मतलब किसी को भी कुछ भी बोलना है, जो भी आपके मन में है, भड़ास है, नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, वो सारा पेपर पे उतार दो सुबह. उसके बाद देखो आप एक खाली हो जाओगे अंदर से. सो देन यू विल बी ओपन टू मोर एक्सपीरियंसेस. एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अ राइटर. तो आप, दैट इज समथिंग आई कैन टेल यू टू स्टार्ट ऑफ विद इफ यू वांट टू बी अ राइटर.
Yeah.